वेलकम टू हर घर पाठशाला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस। एज यू नो, you have studied about the law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum वो क्या था? For an isolated system, what is isolated system? Isolated is that system which is free from external effects. The total that is linear momentum of the system is constant. तो हमें पता है न्यूटन्स जो लॉ है क्या बोलता है। न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ, मैं थोड़ा सा इसमें साइड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसे रफ वर्क सी the linear momentum is equal to force is equal to rate of change of momentum. This is our Newton's second law of motion. तो फोर्स किसके बराबर होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। सपोज करिए if rate of change of momentum, that is if external force that is equal to 0, net force is equal to 0, then rate of change of momentum is equal to 0. But we can say if the differentiation of constant is equal to 0, it means p is equal to a constant. p क्या होना चाहिए? constant. लेकिन बात किसके लिए हो रही है? आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आइसोलेटेड सिस्टम की। Isolated system is that system which is free from external effects. We can say according to the law of conservation of linear momentum, the momentum of the system remains conserved. Momentum of the system remains conserved. That is the linear momentum का केस है हमारे पास। ऐसे ही आइसोलेटेड सिस्टम के लिए मींस लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मींस आई विल साइट एन एग्जांपल कि हमने क्या, हमारे पास एक गन थी और गन में क्या था कि यहाँ पे एक बुलेट थी गन के अंदर। बुलेट है गन के अंदर। अब बोथ आर एट रेस्ट, द मोमेंटम ऑफ द गन दैट इज m into v plus momentum of the bullet that is here the momentum is 0 because why? Because velocity of the gun is 0 as well as velocity of the bullet is 0. तो what is the momentum before firing? Momentum before firing is equal to 0. After firing भी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मीन आफ्टर फायरिंग भी 0 होना चाहिए। तो हमारे पास जो आपका बुलेट जब आगे को जाएगी, सपोज इट हैज स्मॉल मास m and it is velocity small v, so it has m into v is its mass into velocity. Similarly, what is the momentum of this gun? Gun will require velocity that is v. Its momentum is given by that is m into v vector. See this one. M is the mass of the gun. Mass of the gun is more. But we can say before firing and after firing the momentum remains same. ये भी 0 होगा, ये भी क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, both will cancel out each other because velocity कैसी है? नेगेटिव है। जब velocity required velocities को हम लोग बोलते हैं तो momentum before firing is equal to momentum after firing. Then this is the law of conservation of linear momentum. Similar case, जब हम लोग रोटेशन मोशन की बात करेंगे, जब हम रोटेशन मोशन की बात करेंगे तो हमें पता है कि जो हमारे पास टॉर्क होता है, सिमिलर टॉर्क जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। टॉर्क इज इक्वल टू, दिस इज आवर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन केस ऑफ दैट इज इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। टॉर्क इज इक्वल टू d by dt ऑफ L. नाउ सपोज इफ टॉर्क इज इक्वल टू 0, इफ नेट external torque is 0, then what we can say, if tau is equal to 0, then rate of change of angular momentum that is equal to 0. This is equal to 0. If there is no torque will act on the system, then the angular momentum of the system, that is rate of change of angular momentum of the system, is equal to 0. Means we can say L is equal to constant because differentiation of constant किसके बराबर है? हमारे पास फार्मूला है कि differentiation of constant is equal to 0. This is the first integration का फार्मूला, differentiation का फार्मूला है differentiation of constant is equal to 0. It means it is constant, then it is 0. It means L in this case that is constant. L is equal to constant. L क्या है? constant है। इसका मतलब जब हमारी अर्थ that is revolving around the sun, any planet is revolving around the sun, तो उसके ऊपर टॉर्क कितना एक्ट हो रहा है? 0 टॉर्क एक्ट हो रहा है। 0 टॉर्क एक्ट हो रहा है, दैट्स L क्या है उनका? constant है। L कैसा है? constant है। तो L is equal to constant means what is L? L is the combination of L1 plus L2 plus L3 plus so on Ln, that is equal to constant या conserve. But this is called the law of conservation of. But for an isolated system, the total momentum of the angular momentum of the system is conserved या constant. That is, if no external torque acts on the system, the total angular momentum of the system remain conserved. So this is our law of conservation of angular momentum. Means angular momentum हमारा conserve होता है। अब angular momentum के अंदर तो दो चीजें होती हैं, एक इसके अंदर होती है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। मींस आपका एंगुलर मोमेंटम चेंज किस से होगा? मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। मींस ये दोनों चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, दोनों चीजें कंजर्व होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड भी कंजर्व होना चाहिए और डायरेक्शन भी
कंजर्व होनी चाहिए, दैट्स व्हाई अवर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो मैग्नीट्यूड भी कंजर्व चाहिए और डायरेक्शन भी क्या चाहिए, कंजर्व चाहिए। लेकिन हम लोगों को पता है कि जो L होता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, अभी हमने इस रिलेशन को किया, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, दैट रिलेशन एनालॉग्स टू F इज इक्वल टू M इनटू A, F इज इक्वल टू M इनटू A B, M इनटू A, तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा के बराबर हमने इस चीज को क्या किया, प्रूव किया। P इज इक्वल टू M इनटू V के बराबर ये रिलेशन होगा, P इज इक्वल टू M इनटू V, जिस L इज इक्वल टू I इनटू मींस अगर लीनियर मोशन में बात करें इस रिलेशन तो हमारे पास है लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी and the angular momentum I into omega. Means if L is constant, then this is equal to constant. It is equal to constant means I omega is equal to constant. Suppose करिए एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I omega है, दूसरी का omega 1 वेलोसिटी है, तो इसका क्या आ जाएगा I2 into omega 2 आ जाएगा। मींस मेरा बोलने का मतलब जैसे I into omega है, मान लीजिए I into omega is equal to 20 suppose 20 means it is suppose 5, it is 4, then it is equal to 20. Then suppose what will happen if suppose I decreases, then omega increases. Suppose 4 into 5 that is also 20, 10 into 2 that is 20, and 2 into 10 20. It means I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है। अगर ओमेगा बढ़ेगा I तो I कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, मींस ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, मींस अगर आपका I बढ़ेगा तो ओमेगा कम हो जाएगा, अगर I कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, तभी तो कांस्टेंट रहेगा ये, तभी तो कांस्टेंट रहेगा। देखिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया 4, यहाँ 5 से 4 हो गए तो यहाँ 5 हो गए, ये बढ़ गया, यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ 10 आ गया। देखिए रहा तो क्या कांस्टेंट रहा, मींस यहाँ 10 था, यहाँ 2 हो गया, ये 2 था तो ये 10 हो गया। क्यों? क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो जाएगा, बिकॉज ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I इंक्रीजेस देन ओमेगा विल डिक्रीजेस। तो I टू ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट का मीनिंग आपको समझ आ गया कि I इज इनवर्सली या ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I होगा, मींस अगर I बढ़ेगा तो ओमेगा कम हो जाएगा, अगर I कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। So this is I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. So that is this is the angular this is the case for this is the law of conservation of angular momentum. Now we will do some applications of this law of conservation of angular momentum. First application is motion of a planet around the sun. Then there is a balloted answer, ice skater या acrobat in the circus, diver, motion of a tornado, jumping of cat, the speed of a person with some weights in his hands and standing on a rotating turntable increases when he draws the weights to his chest. And there is some numerical, that is if the earth suddenly contracts, what will be the effect on duration of the day? So we will discuss this one by one. Motion of a planet around the sun. See, planets are revolving on the, suppose this is sun, this is our sun, and this is a planet that is revolving around the sun. Suppose planet is here, so it has some mass that is constant, its mass is capital M, that is constant also. The planet is revolving, the planet will move just like this in elliptical orbits, ऐसे आपका planet move करेगा। If you see कि this distance is more, तो यहाँ पे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, मींस I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 इनटू ओमेगा 2, दैट इज I ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कंसेप्ट हम लोग लगाते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज I ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको लगाते हैं। व्हाट इज ओमेगा इज इक्वल टू बेसिकली M इनटू B R इनटू V, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट ओमेगा I into omega, या we can say it as I is equal to mr square into omega, that is equal to constant because I is equal to mr square. See, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो डिपेंड करता है मास और प्लेसमेंट ऑफ मास। हमने मास कैसे प्लेस किया? अगर मान लीजिए हमने जो मास है, जैसे सपोज करिए मेरे पास कोई बॉडी है, मैंने यहाँ रखा हुआ है मास, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मास यहाँ पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m into r स्क्वायर होगा। ऐसे ही मान लीजिए m1 into r1 स्क्वायर होगा, तो मान लीजिए मैंने यहां रखा हुआ है मास, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m2 into r2 स्क्वायर। इट मींस अगर आपके पास r2 कम है तो यहां पे आपके पास r2 कम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? r2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्लेसमेंट ऑफ मास के ऊपर कर रहा है। इसलिए यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। सेम बॉडी वाली सेम पार्टिकल mm है, तो यहां r1 है या r2 है, तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, यहां पे कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा इसलिए क्योंकि r ज्यादा है, यहां पे r क्या है? कम है। सिमिलर केस, जैसे हमारा सन के इर्द प्लैनेट घूम रहा है, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हुई? ज्यादा हुई, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ? ज्यादा हुआ, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कम होगा। मींस यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोर है और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, लेस।
Here moment of inertia less, here moment of inertia is more, but I omega is equal to constant. अगर moment of inertia बढ़ेगा तो ओमेगा कम हो जाएगा, अगर moment of inertia कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर moment of inertia ज्यादा है तो ओमेगा क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, और जैसे यहाँ पे moment of inertia ज्यादा है तो यहाँ ओमेगा यहाँ कम है तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। It means if the moment of inertia will decreases, then the omega will increases, and if moment of inertia will decreases, then the omega will increases. Reciprocal vice versa. See the case. यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आपका, ज्यादा है तो ओमेगा मींस जो प्लैनेट है वो सन से दूर, जो उसकी स्पीड कम होगी और सन के पास आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी क्यों बढ़ गई, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ ज्यादा है और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है मींस व्हेन द प्लैनेट्स दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, इफ द प्लैनेट इज फार फ्रॉम द सन देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज लेस, इफ द प्लैनेट इज नियर टू द सन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज मोर, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज मोर एंड हियर द एंगुलर वेलोसिटी इज लेस। less here angular velocity is less, why it is less, because moment of inertia is more। दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, L should be constant, L क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन होगी। सेकंड एप्लीकेशन में चलते हैं, बैलेट डांसर, आइस स्केटर एंड एक्रोबैट। अब जो बैलेट डांसर होती है वो क्या करती है कि जो अपनी लेग होगी उसको पहले पुश करेगी, ऐसे पीछे की तरफ को पुश करेगी, उसने टॉर्क अप्लाई किया, उसने क्या अप्लाई किया, टॉर्क। जब उसने टॉर्क अप्लाई किया तो उसने घूमना शुरू कर दिया। जब हम उसने घूमना शुरू किया तो वो क्या करेगी, जो अरेंजमेंट ऑफ इट्स हैंड्स, जो हैंड्स उनको ऐसे इकट्ठे कर लेगी, हैंड्स इकट्ठे कर लेगी और एक टांग को फोल्ड कर लेगी। तो उससे क्या होगा कि जब उसने ऐसे कर लिया तो क्या होगा, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ज्यादा होगा, अगर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। जैसे वो अपने हाथों को फोल्ड करेगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी क्यों बढ़ी, क्योंकि एक केस में एंगुलर जो एक्चुअल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली डिपेंड अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ मास। मास की प्लेसमेंट कैसे की, अगर मास हमने ज्यादा दूर प्लेस किया हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, मास पास में प्लेस किया हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो जब बैलेट डांसर है या आपका आइस स्केटर है या आपका एक्रोबैट है जो सर्कस में जोकर होता है, आइस स्केटर हो गया, आइस स्केटर उसने अपनी स्पीड बढ़ानी तो अपने आप को ऐसे इकट्ठा कर लेता है, जब वो इकट्ठा कर लेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, जब खड़ा हो जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी। खड़ा होने से क्या हो, उसकी जो प्लेसमेंट ऑफ मास ऐसे ऐसे हाथ कर लेगा वो, मान लीजिए अगर ऐसे हाथ करे तो मास कहां चला गया, दूर चला गया, और आर क्या हो गया, बढ़ गया। जब आर बढ़ गया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड इट मींस सेम प्रिंसिपल लग रहा है हमारे पास कि अगर I is this mass this I is inversely proportional to omega या omega is inversely proportional to I। अगर I बढ़ेगा तो ओमेगा कम हो जाएगा, if I increases then omega decreases, if I decreases then the omega will increases। तो जैसे वो अगर मान लीजिए जो आपका आइस स्केटर उसने रुकना होगा तो उसको क्या करना चाहिए, उसको इकट्ठे होना चाहिए, उसको बॉडी इकट्ठे करनी चाहिए कि खोल देनी चाहिए, उसको अपनी बॉडी को खोल देना चाहिए। जब अपनी बॉडी खोलेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। This is the second example of your law of conservation of angular momentum. Now we will see the third example, the diver। डाइवर क्या होता है, डाइवर क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ हाइट है, यहाँ से हमने ऐसे फट्टे के ऊपर आपका कौन खड़ा है, डाइवर इज देयर, डाइवर इज स्टैंडिंग हियर, सपोज डाइवर इज स्टैंडिंग हियर। नाउ व्हाट इट विल डू, इट विल जंप्स टू वाटर, वाटर में जंप करेगा ये डाइवर, सोमरसॉल्ट करता हुआ है। सोमरसॉल्ट मतलब यहां से क्या करेगा, पहले तो यहां से पुश करेगा, जब यहां से पुश होगा तो इसने क्या किया, पहले टॉर्क अप्लाई किया, लेकिन जब इसने पुश कर दिया उसके बाद तो यहां पे कोई पुश होगा, जब नहीं होगा तो कोई फोर्स लगेगी, टॉर्क कितना होगा, जीरो होगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा, यहां से जंप करेगा। जब ये जंप करेगा तो अपनी बॉडी को कर्ल कर लेगा, ऐसे इकट्ठी कर लेगा। जब ये अपनी बॉडी को इकट्ठी कर लेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया आपका, कम हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब ये ऐसे ऐसे जंप करता हुआ कहां पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच। जितनी ये बॉडी को ज्यादा कर्ल करेगा उतना ही ये कर्ल करता हुआ कहां पहुंच जाएगा, अंदर पहुंच जाएगा। जब ये वाटर में जाएगा फिर से अपने हाथों को ऐसे एक्सपेंड कर देगा। क्यों कर देगा एक्सपेंड, अगर ये नहीं करेगा तो उसको चोट आएगी, अगर ये एक्सपेंड कर देगा हाथों को तो क्या हो जाएगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये जंप करते हैं डाइवर, सोमरसॉल्ट करते हुए नीचे को आते हैं। जिम्नास्टिक में देखा होगा आपने, इस तरह सोमरसॉल्ट करते हुए नीचे गिर जाते हैं गद्दे को ऊपर आकर के। तो ये कैसे होता है पॉसिबल, क्योंकि वहां पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाते हैं, अगर अपनी बॉडी को खोल देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। लेकिन जब हम अपनी बॉडी को कर्ल कर लेंगे, इकट्ठी कर लेंगे, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। प्लेसमेंट ऑफ मास दूर हो गया, प्लेसमेंट ऑफ मास दूर हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो दिस इज द केस, अगेन योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज देयर। नाउ फॉर फोर्थ एप्लीकेशन, मोशन ऑफ ए टॉर्नेडो। अब टॉर्नेडो क्या होता है, टॉर्नेडो क्या होता है कि हवा जो होती है, हवा के जो कण हैं वो मिलकर के एक चक्रवात बनाते हैं, मतलब गोल गोल घूमते हैं और बहुत ही अलार्मिंगली हाई स्पीड से घूमते हैं। जैसे यहाँ से ऐसे पार्टिकल्स होंगे, यहाँ इनके बीच में हम अपनी लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि भूत आ गए, भूत आ गए। ऐसा भूत कुछ नहीं होता, मिट्टी मिट्टी ऐसे उड़ करके उसके साथ पत्ते पुत्ते उड़ते उड़ते ऐसे ऐसे जाते हैं। तो अलार्मिंग यहाँ पर तो कम आते हैं, लेकिन अगर हम और जगह बात करें तो बहुत ज्यादा तेज ये टॉर्नेडो होते हैं। तो टॉर्नेडो में क्या होता है कि ये जो बाहर वाले पार्टिकल्स होते हैं
ये सेंटर से दूर होते हैं तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है और अंदर वाले पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। जब अंदर वाले पार्टिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो क्या होगा बेटा कि आपका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो अंदर वाले पार्टिकल की स्पीड एलआरएमएल हाई होती है और बाहर वाले पार्टिकल की स्पीड कम होती है। अंदर वाले में कोई चीज फंस गई, मान लीजिए कोई आदमी फंस गया, तो ये नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि अंदर इतनी ज्यादा स्पीड होगी पार्टिकल्स की, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। बाहर वाली एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। बाहर वाली क्यों कम होगी? क्योंकि पार्टिकल सेंटर से दूर है, आर ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। और अंदर के केस में आर जो आई है, आर जो है आई मींस एम आर स्क्वायर ओमेगा होता है। अगर आर ज्यादा है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। अगर आर कम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो ओमेगा बढ़ जाएगा। तो अंदर ओमेगा ज्यादा, बाहर मींस टोर्नेडो के जो पार्टिकल्स होते हैं, उन जो अंदर वाले पार्टिकल्स होते हैं, इनर पार्टिकल्स होते हैं, दे आर मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी, बट द पार्टिकल्स दे हैव स्पीड, या व्हाटएवर द पार्टिकल आउटसाइड दे विल मूव विद द lesser velocity because their moment of inertia is more. That's why angular velocity is less. Here angular velocity is more. So this is the case for tornado. A jumping of cat. अगर मान लीजिए कैट के हम लोगों ने भी कहीं से जंप मारना हो तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हम अपनी बॉडी को ऐसे इकट्ठा कर लेंगे और जंप मारेंगे तो जैसे जमीन पे गिरेंगे तो हमें बहुत ज्यादा चोट लगेगी। लेकिन जैसे हम लोग जंप मारते हैं, ऊपर से जंप मारते, नीचे आकर अपनी टांगों को ऐसे फैला लेते हैं। कैट भी अपनी टांगों को ऐसे फैला लेती है। उससे फैलाने से क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो उसको चोट कम आएगी। तो कैट कहीं से जंप मारेगी, when the cat will jump from one place to another place, it will stretch her body, अपनी बॉडी को क्या कर देगी? स्ट्रेच कर देगी। स्ट्रेच क्यों करेगी? It will increases the moment of inertia. If the moment of inertia will increases, then the angular velocity decreases. That's why she hurts less. उसको चोट कम आएगी। तो हम लोगों ने भी जंप मारना है तो हम लोग अपने पैरों को ऐसे फैला देते हैं, हाथों को फैला देते हैं, जिससे क्या होगा? हमें चोट कम आएगी। उसके बाद the speed of a person with some weights in his hands and standing on a rotating turntable increases when he draws the weights to his chest. ये बिल्कुल सिंपल है कि मान लीजिए हमारा रोटेटिंग टेबल है, यहाँ पे कोई आदमी जो है वो हमारा यहाँ पे खड़ा है। तो जब ये खड़ा है यहाँ पर तो व्हाट विल हैपन, इसने क्या किया हुआ है कि अपने ये जो हाथ हैं, हाथों के ऊपर क्या उठाया हुआ है? डंबल उठाया हुआ है, वेट उठाया हुआ है हेड्स के बीच में। अब ये ऐसे खड़ा है और ये टेबल घूम रहा है। जब ये घूम रहा है, यहां से ये घूम रहा है, घूमता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये अपने हैंड्स को क्या कर लेगा? अपने हैंड्स को क्या कर लेगा? ये फोल्ड कर लेगा। इस रोटेटिंग टेबल से अपने हैंड्स को क्या कर लेगा? फोल्ड कर लेगा। वेट कैसे? ऐसे फोल्ड कर लेगा। जब वेट को जब ये फोल्ड कर लेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे इसकी स्पीड कम थी, यहाँ पे ओमेगा लेस था, यहाँ पे ओमेगा मोर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ओमेगा मोर? क्योंकि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? ज्यादा था। जब इसने स्ट्रेच किया हुआ था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, तो आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट का कांसेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। जब ये अपने हाथ को ऐसे ड्रॉ कर लेगा, हाथ को ड्रॉ कर लेगा, बेड को ड्रॉ कर लेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस हो जाएगा, आई लेस हो जाएगा और ओमेगा बढ़ जाएगा। तो ओमेगा विल इंक्रीजेस व्हेन आई विल लेस। इफ आई इज मोर देन द ओमेगा विल लेस। तो बट वी कैन से कि ये हमारे पास एग्जांपल आ गए किस चीज के? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और इसकी एप्लीकेशन आ गई। उसके बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, इफ द अर्थ सडनली कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द डे। अगर अर्थ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब सिकुड़ जाए अर्थ, तो उसके ड्यूरेशन ऑफ द डे को क्या फर्क पड़ेगा? देखिए अगर हम बात करें अर्थ की, मान लीजिए द रेडियस ऑफ द अर्थ आर है, रेडियस ऑफ अर्थ सपोज that is equal to r and m is the mass of earth, mass of earth। अब अर्थ कैसे मानते हैं हम लोग? अर्थ को स्फेरिकल मानते हैं लगभग। कैसे मानते हैं? स्फेरिकल। फॉर अवर कंसीडरेशन हम लोग अर्थ को कैसा मानते हैं? स्फेरिकल मानते हैं। तो जो अर्थ है वो स्फेरिकल है। अगर हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें कि अर्थ ऐसे है और इसके सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 2/5 mr² हम लोग लेते हैं। 2/5 mr² लेते हैं। That is the moment of inertia for Earth. Sphere के लिए क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/5। जैसे डिस्क के लिए तो हाफ mr² होता है। ये डिपेंड करता है अबाउट द सेंटर, अबाउट द एक्सिस, मतलब आप लोगों ने ये चीजें पढ़ ली हैं। अबाउट दिस सेंटर ऑफ रोटेशंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। अब अगर मैं बात करूं इसके टाइम पीरियड की या ओमेगा की, तो ओमेगा इसका किसके बराबर होगा? 2π/t के बराबर होगा। तो इसका I1 into ओमेगा 1 किसके बराबर है? इसका I1 ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस ओमेगा 1, दैट इज कम्स टू बी इक्वल टू 2/5 mr² into 2π/t आ जाएगा। दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Similarly,
if earth will contract and its radius, now after contraction radius of earth become equal to, suppose that is equal to r dash, इतना हो गया r dash. Then what about mass? Mass remain the same because contract हुई, mass तो उतना रहा. तो आपके पास क्या जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या जाएगा आपके पास, I2 क्या जाएगा, I2 is equal to 2/5 m into r dash का स्क्वायर आ जाएगा. What about ओमेगा 2, that is 2 pi upon t dash आ जाएगा. t dash क्यों आया, क्योंकि टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ऑब्वियस टाइम पीरियड बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, हमें पता क्या हो रहा है, तो टाइम पीरियड देखते हैं क्या होता है. तो हमारे पास क्या आ गया कि व्हाट इज द देन व्हाट इज I2 ओमेगा 2, that is 2/5 m r dash का स्क्वायर into 2 pi upon t dash. Now this question number 2. लेकिन हमें पता है according to law of conservation of angular momentum, that is I1 omega 1 that is equal to I2 omega 2. So but we can write these things, that is 2/5 mr square into 2 pi upon t is equal to 2/5 mr dash का square into 2 pi upon t dash. 2 pi is cancelled with 2 pi and here 2/5 is cancelled with 2/5, m is cancelled with m. What will you got here? आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा that is r square is equal to and here is 2 is here also 2 pi upon t is equal to r dash square upon t dash. What is t dash equal to, ये तो हमने निकालना है. t हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, that we know 24 hours. तो t dash किसके बराबर आ जाएगा, t dash is equal to r dash square upon r square into t. We can write r dash upon r का whole square into t. As you know, रेडियस जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो r dash is less than r. It means जो आपका t dash है it is less than t. t dash is, क्योंकि r dash से ये कम हो गया, अगर कम हो गया डिवाइड करेंगे ज्यादा से तो कम वैल्यू आएगी. t dash is less than p means what will happen then, time period will decreases. time period क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा. इसी क्वेश्चन को आपको अगर आ जाता है कि मान लीजिए रेडियस ऑफ अर्थ r/2 हो गया, कितना हो गया, r/2 हो गया, अर्थ कॉन्ट्रैक्ट हुई और रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो गया, r/2 हो गया, तो ड्यूरेशन ऑफ द डे क्या रह जाएगी, देखते हैं. इफ r become equal to r dash become equal to r/2, suppose then what is t dash equal to r upon 2 upon r upon 2 upon r का होल स्क्वायर into t, then it will comes to equal to, that is 1/4 into t, that is t/4, और that is equal to 6 hour. t dash किसके बराबर आ गया, 6 hour. तो दिन कितना कम हुआ, 18 घंटे कम हुआ, 6 आवर रह जाएगा. मींस अगर अर्थ अपने रेडियस से आधी रह जाती है कॉन्ट्रैक्शन के बाद तो उसका दिन कितना रह जाएगा, ओनली 6 आवर. या दिन में कितनी कमी आ जाएगी, 18 घंटे की, क्योंकि 24 - 6 दैट इज 18 आवर की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी. ये न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में आता है, तो बेटा आप लोगों ने ये करना है, यू हैव टू डू दिस न्यूमेरिकल. थैंक्स, हैव ए नाइस डे. अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल SK क्लासेस फॉर फिजिक्स. आई विल थैंकफुल टू यू. ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे.